So, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to discuss the zoology section of NEET 2024. So, let's begin. The first question is match the list 1 with list 2. And as you guys can see, this question is from body fluids and circulation and the topic is ECG. बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है. P wave को हम लोगों को सबको पता है कि P wave represent the depolarization of atria and the QRS complex represent the depolarization of ventricle. So जिसका भी पेपर है उसने सही मैच किया है, that is A का 3 and B का 2 हो जाएगा और किसी ऑप्शन में ऐसा है नहीं. मुश्किल से 5 सेकंड लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 187. Gauss competitive exclusion. This is from ecology, which is actually from botany. So we'll skip this question. Third question, mitochondria and chloroplast. So this question is also from cell cycle and cell division, which is actually from botany. Next question is 189. Choose the correct statement given below regarding juxtamedullary nephron. I think yes, second option is right. Loop of Henle of juxtamedullary nephron runs deep into the medulla. This is very much correct. Okay. Our next question is 190. Match the list 1 with list 2. Okay, fine. First is the exophthalmic goiter. Exophthalmic goiter, as we all know, it is due to the hypersecretion of thyroidal hormone, and the name exophthalmic indicate that the eyeballs have protruded. बिल्कुल सही जवाब. Acromegaly means face यानी skull के facial bones का बड़ा हो जाना. So excessive secretion of growth hormone. Yeah, right. So A का 3 and B का 4 बिल्कुल सही मारा इस बच्चे ने. Option number 3 is the right. Let's move forward. So this question is from the locomotion movement. Fibrous joint, as we guys know, fibrous joint को movement allow नहीं करते हैं. स्कल में होता है, बिल्कुल सही. कार्टिलेजियस जॉइंट एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में मिलेगा. ए का 3 बी का 1 एक ही ऑप्शन दिख रहा है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not a steroidal hormone? As we guys know that gonads से आने वाले टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों स्टेरॉइडल है और एड्रेनल ग्लैंड से आने वाला ग्लूकोकोर्टिकॉइड दैट इज कोर्टिसोल भी स्टेरॉइडल है. ग्लूकागॉन पैनक्रियास से आता है, प्रोटीनिशियस हार्मोन है. सो यस, सही मारा इस बच्चे ने. अगला सवाल है, इन बोथ द सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एनल सरसाई प्रेजेंट ऑन. बिल्कुल सही. इट इज प्रेजेंट ऑन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन दैट इज द 10th सेगमेंट. नाउ यहाँ पे assertion और रीजन है अगले क्वेश्चन में. FSH acts on ovarian follicles in the female and Leydig cells in the male. No, on the Leydig cells in the male LH acts. So a assertion is wrong. Now let's go to the reason. Growing ovarian follicle secrete estrogen in female, right? While interstitial cell that is Leydig cell secrete androgen in male human. बिल्कुल सही. A is false but reason is true. So yes, सही मारा इस बच्चे ने. Option number 3 is the right answer. अगला सवाल ये जो दिख रहा है, दिस इज फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज टीवी प्लस ERV. करेक्ट. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज ERV प्लस RV. बिल्कुल सही. सो ए का 2 और बी का 4 से ही बन जाएगा. यस, एक ही ऑप्शन में है. अगला सवाल है, ये तीनों मसल्स दिख रहे हैं. दिस वन इज द स्केलेटल मसल, दिस वन इज स्मूथ मसल, दिस वन इज द कार्डिक मसल. स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल ट्राइसेप्स में है, स्मूथ मसल स्टमक में है, कार्डिक मसल हार्ट में है. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Now this is again from the cockroach. The structure used for storage of food. Okay, तो क्रॉप होगा इसका. ए का 4 होगा दो ऑप्शन में. तो बी का भी देख लेते हैं यहाँ पे. बी, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट. या राइट. तो फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे हमको गैस्ट्रिक हेपेटिक सी का यानी बी का होगा 2. तो ए का 4 बी का 2 एक ही ऑप्शन में. अगले पे बढ़ते हैं. सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम. इट इज ट्रू बट द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा पॉन्स एंड सेरेब्रम. नो, सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. ये ब्रेन स्टेम में नहीं आएगा. सो 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. Okay, so this one is from the era, the Mesozoic era, the Proterozoic era, Cenozoic era, and Paleozoic era. Okay, so as we guys know that the Cenozoic era is of the mammals. C का 4 हो जाएगा यहाँ पे. दो ऑप्शन में है. बात करते हैं हम मीजोजोइक एरा का. तो ये हमें मिलता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स में. सो ए का 3 हो जाएगा और हमारा सी का 4 हो जाएगा. तो ए का 3 सी का 4 एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. ओके, अगले पे बढ़ते हैं. एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप फादर इज बी पॉजिटिव, मदर इज ए पॉजिटिव, चाइल्ड इज ओ पॉजिटिव. तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? अगर चाइल्ड ओ पॉजिटिव है और मदर फादर ए और बी है, इसका मतलब है कि दोनों हेट्रोजाइगस है. यानी फादर का हो जाएगा बी एंड आई, मदर का हो जाएगा ए एंड आई, एंड बच्चे का आई आई. यानी ऑप्शन नंबर 1 ए ओनली. Bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells, including lymphocytes, are produced. Absolutely correct. And both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development maturation of T lymphocyte. ये भी सही है. Both option 1 and 2 are correct. तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइपेज. लाइपेज किसको तोड़ेगा? लिपिड के ईस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा. ए का हो जाएगा 2,
एक ही ऑप्शन में है, न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, चलिए ठीक है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, तो ये दोनों जो है स्विमिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक बर्ड है और ये एक मैमल है, तो हम इसको बोलेंगे कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। अगेन दिस वन इज़ फ्रॉम द बॉटनी, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, वैसे है ये आसान। सबसे पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस होती है। तो आप देख लो ऐसा कहाँ पे है। ई सी, yes, ECA and then D and then B, yeah, option number 3, not affect the Hardy Weinberg equilibrium. तो genetic drift will affect, right, genetic gene migration will also affect the equilibrium. Constant gene pool मतलब constant ही है, कोई change नहीं हो रहा, तो equilibrium disturb नहीं होगा, option number 3 would be the right answer. Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity, this is absolutely correct. Hymen is torn during the first coitus only, no, fall करने से भी हो जाता है, तो 1 is correct but 2 is incorrect, option number 2. टाइफॉइड, टाइफॉइड इज कॉल्ड बाय साल्मोनेला टाइफी विच इज द बैक्टीरिया, ए का 4 होगा, किसी ऑप्शन में नहीं है, बहुत आसान सवाल था। अगले पे आते हैं, ये ह्यूमन इवोल्यूशन है तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा एक ट्रिक है इसके लिए, DRAHENS, D फॉर ड्रायोपिथेकस, R फॉर रामापिथेकस, A फॉर ऑस्ट्रोलोपिथेकस, H फॉर होमो हैबिलिस, तो सबसे पहले A होगा, होमो हैबिलिस, DRAHE, उसके बाद होगा इरेक्टस, नई ऑप्शन में N, यानी A के बाद होगा C, एक के बाद होगा हमारा C, DRAHENS, DRAH यानी होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, A D एंड देन C एंड देन B, या ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अगला आते हैं, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन फंडस, यस, ये तो यूट्रस का पार्ट है, ऑप्शन नंबर D। Annelids are true coelomate, yes right. Podiphenus are pseudocoelomate, no. Podiphenus are acoelomate. Ascalmins are acoelomate, no. Ascalmins are pseudocoelomate, and platyhelminths are pseudocoelomate, no. Platyhelminths are also acoelomate, so only option 1 is correct. Okay, अभी हमारा सेल चैप्टर का आ रहा है ये, तो हम इसको स्किप करते हैं, अगले पे आते हैं। टेरोफाइलम, टेरोफाइलम इज एंजल फिश, ए का 3 हो जाएगा। माइजिन हैग फिश, बी का 1 हो जाएगा। सिरिस्टिस सॉफिश एंड डी, सही हमारा इस बच्चे ने। अगले पे आते हैं, पॉन्स, तो पॉन्स किसको कनेक्ट करता है भाई, पॉन्स जो है वो, जब हम सेरेब्रम की बात है, सेरेब्रम जो है वो हमारा क्या करता है, बैलेंस वगैरह को मेंटेन करता है, तो हमारा यहाँ डी का हो जाएगा 1, एक ही ऑप्शन में है, बाकी भी देख लेते हैं। मेडुला तो गैस्ट्रिक और रिस्पिरेशन कंट्रोल करता है, बी का हो जाएगा 4, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, और ए का हो जाएगा 3, यानी कि कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, या पॉन्स का नाम ही है, पॉन्स मतलब ब्रिज कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाँ, एक्स जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कर रहा है, वाई जो है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, बिल्कुल सही। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक्चुअली कंट्रोल्स द लाइक कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, सो ए का बिल्कुल सही लिखा है इसने। वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व द रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, अब इस पे आते हैं हम लोग, तो ये थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन तो केमिस्ट्री का आ गया, इसको दोबारा से रोटेट करते हैं, ठीक है। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, डी का 2, एक ही ऑप्शन में है, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईओडी, लिप्स लुक, यस इनर्ट है ये, ए का 3 हो जाएगा, किसी और ऑप्शन में, हाँ 4 में भी है, बी का क्या होगा, कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड 375, आगे बढ़ते हैं। प्लूरोब्रेकिया टीनोफोरा का एग्जाम्पल है, ए का हो जाएगा 2, दो ऑप्शन में है। रेड्यूला मोलस्का में मिलता है, बी का हो जाएगा 1। अगले पे आते हैं, वजह फॉर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हाई PO2 एंड लेस H+, बिल्कुल सही मारा है इसने। आते हैं कोकेन, कोकेन इरिथ्रोजाइलम कोका, ए का हो जाएगा 3, किसी ऑप्शन में नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये फिर से सेल चैप्टर का आ गया यहाँ पे, तो इसको हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भी स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे केमिस्ट्री के ही हैं। फिजिक्स आ गया यहाँ पे, फिजिक्स को स्किप करते हैं। तो आई गेस इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे जूलॉजी सेक्शन के। ये तो बॉटनी है,
यहाँ पे जूलॉजी है बीच में। लेट मी चेक, ऊपर भी होगा जूलॉजी। ये बॉटनी सेक्शन था, ये भी बॉटनी सेक्शन है। या this page is from zoology. In the nephron, the descending limb is impermeable to water. No, the descending limb is permeable to water. That's why filtrate gets concentrated. First statement galat hai. Proximal convoluted tubule lined by simple columnar. No, it is lined by simple, not simple actually, brush bordered cuboidal epithelium. So yeah, both statements are false. Option number one. Breastfeeding during initial period of infant growth is recommended doctors. बिल्कुल सही. Colostrum contain antibody necessary for developing resistance. Both statement are correct and correct explanation as well. Okay. Stage of pathway of conduction of action potential through heart. So सबसे पहले ऐसे नोड में जाएगा, फिर एवी नोड में जाएगा, फिर एवी बंडल में जाएगा, फिर बंडल के ब्रांचेस में जाएगा, फिर पुरकिंजी फाइबर्स में जाएगा, यानी E then A, sorry, E and then C then A then D and then B. All right. This question is from the botany. आगे बढ़ते हैं. अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा. 1 का 3 हो जाएगा. एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज फॉर द एडीए डिफिशियंसी, यानी कि डी का 2 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सेकंड. टीआई प्लाज्मिड इज फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. अगेन दिस इज फ्रॉम दिस साइड इज फ्रॉम बॉटनी. इधर आते हैं, ये जूलॉजी का सेक्शन है. विच इज नॉट अ नेचुरल कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड. Vault, yes, vault is not a natural method. Common cold is caused by rhinovirus and hemozoin is released by the plasmodium in the case of malaria. A का 3, B का 1. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. गलत क्या है? बायोरिएक्टर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल. बायोरिएक्टर आर एक्चुअली लार्ज टैंक्स. स्मॉल स्केल पे नहीं, लार्ज स्केल पे यूज होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. सो मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून है, ए है, बिल्कुल है. रिमोटेड अर्थराइटिस भी है, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं है, ये एक हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो गाउट भी नहीं है. ई है हमारा सिस्टमिक लूपस, यस ये है. सो इसका होगा 1, ए बी एंड ई. ये फिर से केमिस्ट्री का पेज आ गया. ये बॉटनी है. ये आ गया हमारा जूलॉजी का. यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यस राइट. गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं. ए का 3 हो जाएगा, किसी ऑप्शन में नहीं है. कितने आसानी से बन जा रहा है. ये हमारा हो गया फिर से बॉटनी का क्वेश्चन. आते हैं यहाँ पे. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकला, पिट्यूटरी पे गया, एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन कराया. ए हो गया हमारा एफएसएच. एक ही नहीं, दो ऑप्शन में है. एफएसएच किस पे एक्ट करता है? सी हमारा सर्टोली सेल. तो एफएसएच के बाद सर्टोली सेल, ये ऑप्शन 4 सही है. एलएच काम करता है बी यानी लेडिक सेल पे, और एफएसएच स्टिमुलेट करता है स्पर्मियोजेनेसिस. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. ये एंजाइम का कैटालिटिक साइकिल है, बताना है क्या हो रहा है. तो सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे, फिर सबसे पहले होगा ई, फिर होगा ए, यानी सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा. ई होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है. फिर डी होगा, दैट इज केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट टूटेगा, प्रोडक्ट रिलीज होगा, और फिर से एंजाइम फ्री हो गया है सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए. ऑप्शन नंबर डी. नॉन कॉर्डेट के बारे में क्या सही है? फेरिंग्स में गिल स्लिट नहीं होता है नॉन कॉर्डेट के, वो कॉर्डेट में होता है. नोटोकॉर्ड एब्सेंट, बिल्कुल सही, बी होगा. सीएनएस डॉर्सल हमारा होता है, उसका नहीं है. हर्ट डॉर्सल इफ प्रेजेंट, बिल्कुल सही. पोस्ट एनल एब्सेंट, ये सही मारा इस बच्चे ने. बी, डी एंड ई होगा इसका आंसर. ये मेंडल्स लॉ है. ये बॉटनी का सवाल आ गया फिर से. ये पेज पूरा बॉटनी का है, हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं. ये भी बॉटनी का पेज है, स्किप कर रहे हैं हम. ये आ गया हमारा केमिस्ट्री का पेज. बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस नीचे के जूलॉजी के डिस्कस कर लिए हैं. सो आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी इससे. मैंने बहुत क्विक डिस्कशन किया है, क्योंकि अगर आप नीट दे के आए हो तो ऑब्वियसली आप पहले से पढ़ चुके हो. इन केस किसी बच्चे को बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो यू कैन लाइक राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड टिल देन कीप हसलिंग. आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा. नहीं भी गया है तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. You can like re-prepare, or you can just focus on something else. So thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe. Thank you.